Morning, students. How are you? I hope you all are fine. So, now, student, today's Sanskrit subject we learn lesson number 5 Gunvati Kanya, a virtuous girl. So, now, start with this lesson. Poet Dandi is well known as prose written in Sanskrit literature. He has written a prose work named Dashkumar Charitam. Its theme is imaginative 10 Kumaras, as it was decided start traveling in 10 different directions. During the journey, whatever every Kumar has experienced is described in 10 Uchvas, यानी कि section of this work. In the 6th Uchvas, Mantragupt describes his own experience of journey. At this juncture, he narrates the story of Shakti Kumara. The story has been edited and presented here behalf. Man and woman are two wheels of a chariot in the form of household life. As it is essential to have both the wheels of a chariot similar is in shape and size. Similarly, men and women working as wheels of household chariot should also be similar in thought and virtues. Shakti Kumara, the hero of the story, is endowed with good qualities. Hence, he wants to marry a girl having good quality similarly to him. He has made a plan of find out a qualitive girl of his own choice. As per his plan, a girl who can prepare and feed various food item from only one press, यानी कि about 2 kg paddy is a virtuous girl. After finding such a girl, he would put a proposal of marriage, and if she agree, he will marry her. Shakti Kumara, who was moving in different countries in search of a virtuous girl, find one girl living in Kanchinagar, situated on the bank of river Kaveri. The girl, using her extraordinary intellect, prepares various food items and please Shakti Kumara by feeding him those items with love. Thus, the girl succeeds in the test. Shakti Kumara puts a proposal of marry and marries her after her consent. The moral of the story is that in spite of one two things, a good person with excellent skill can get desired happiness. Active past participle used in this lesson are also to be noted. ये गुणवती कन्या है, उसमें एक शक्ति कुमार नाम के लड़के की बात की गई है कि वो एक ब्राह्मण पुत्र है। वो इतना होशियार है कि वो अपने लिए अपनी जीवन साथी है वो भी उतनी ही इंटेलिजेंट होनी चाहिए, ऐसा वो सोचता है और उसको खोजने के लिए वो निकल जाता है। और वो सिर्फ 2 kg पेड़ी उसको देकर, राइस है वो उसे देता है और उसमें से वो पूरा व्यंजन, पूरे खाने का जो भोजन का मेनू होता है वो किस तरह से रेडी करती है उसकी बात यहाँ पे इस लेसन में बताई गई है। और यहाँ पे कहा गया है कि मैन एंड वुमेन दोनों है वो
जो घर है, घर रूपी रथ के वो दो पहिए होते हैं, तो दोनों पहिए एक जैसे ही होने चाहिए, ऐसा ये लड़का जो शक्ति कुमार है उसका मानना है। और कहा जाता है कि अगर दोनों पहिए एक साथ चलेंगे तो जीवन है वो आसान हो जाएगा और खुशी से वो आगे बढ़ सकेंगे। सो नाउ वी स्टार्ट दिस ट्रांसलेशन। कांचीनगरे शक्तिकुमारो नाम एकः श्रेष्ठीपुत्रः प्रविशति स्म। देयर लिव्ड इन अ सिटी called Kanchi, the son of a merchant named शक्ति कुमार। कांची नगर नाम के एक गांव में शक्ति कुमार नाम का एक शाहूकार का पुत्र रहता था। स यदा स्वकीयस्य जीवनस्य 22तमे वर्षे प्रविष्टस्तदा चिन्तामापन्नः। नास्ति द्वारविहीनानाम् अननुरूपगुणदाराणां च सुखम्। When he entered the 22 years of his life, he became worried. जब वो 22वें वर्ष में प्रवेश करता है तब वो चिंता में पड़ जाता है। Those who have no wife and those whose wife devoid of suitable virtues do not become happy। पत्नी के बिना और उसके अनुरूप गुण बिना गुण की पत्नी, ऐसे लोगों के पास सुख नहीं मिलता, ऐसा वो मानता है। ततः स प्रभुतं विचार्यं वस्त्रांतरे पिनद्दशालिः दारग्रहणाय तत्कथं गुणवतीं भार्याम् अहं विन्देयमिति। सो हाउ कैन आई गेट अ वर्चियस वाइफ। तो मैं किस तरह से गुणवान पत्नी को प्राप्त करूँगा। ततः स प्रभुतं विचार्यं वस्त्रान्ते पिनद्दशालिः दारग्रहणाय विविधानां देशानाम् अभ्रमत। Then thinking deeply he wandered at various places with paddy tied at the hem of his garment to get a wife। फिर बहुत सोचने के बाद एक कपड़े के अंत में डांगर को बांध के वो पत्नी को प्राप्त करने के लिए अलग अलग देशों में जाता है। एकदा स कावेरी तीरपतने समागतः। वंस ही कम टू अ सिटी ऑन द बैंक ऑफ द रिवर कावेरी। एक बार वो कावेरी नदी के तीर पर आए हुए एक नगर में जा पहुंचता है। अतः सह कूपे विरलभूषाणां कुमारी मेकाम अपश्यत। Here he saw a young girl wearing lace ornament near the well। यहाँ वे एक कुएं पर कम आभूषण धारण किए हुए एक कुमारी को देखता है। तस्या रूप संपदा विभूतः सो अचिंत्यत आकृष्टम में हृदयम अस्याम। He who was overpowered by the wealth of her beauty thought, my mind is attracted to his girl। उनकी रूप संपत्ति से वो मुग्ध हो जाता है और सोचता है कि मेरा मन है इसकी ओर आकर्षित होता है। तदेतां परीक्ष्य विवाहप्रस्तावं कृत्वा तस्याम समतौ उद्वहामि। सो टेस्टिंग हर एंड मेकिंग हर अ प्रपोजल, आई विल मैरी हर इफ शी एग्रीज। फिर
उनकी परीक्षा करने के लिए उसके बाद विवाह का प्रस्ताव रखेगा और अगर वो सम्मति देगी तो मैं इसके साथ शादी करूँगा। स ताम निकषा संगत्य सविनयम आह अस्ति ते कौशलं शालीप्रस्थेन अनेन सम्पन्नमाहारं मां भोजयितुम्। Approaching her politely, he said, Do you have a skill to feed me with sumptuous food prepared with this on pressed paddy? वो अब उसके पास जाता है और विनयपूर्वक उसे कहता है कि क्या तुम ये एक प्रस्त यानी कि 2 kg डांगर में से भोजन बना के क्या मुझे तुम खिलाने की कुशलता रखती हो? ततः सा ओमिति उक्त्वा प्रस्थमात्रं धान्यमादाय श्रेष्ठीपुत्रस्य याचनानुसारं कर्तुं प्रवृत्ता। Saying yes and thinking only one pressed paddy, she proceeded to do as he had asked the charge. फिर वो हाँ कहती है और ये एक प्रस्थ जो डांगर है उसे लेकर वो शाहूकार की पुत्र की मांगनी के मुताबिक वो प्रवृत्त हो जाती है। ततः आदौ सा बुद्धिमती कन्या तानशालिन प्रथमम् आतपे तप्तवती। Then first that intelligent girl heated the paddy in the sun. फिर ये बुद्धिशाली कन्या है वो पहले डांगर को सूर्य के ताप में गर्म करती है। ततः समायां परिशुद्धायां भूमौ तान अघटयत। Then she ground then on the flat और even ground। उसके बाद वो उस डांगर को समतल ऐसी क्लीन जो लैंड है भूमि है उस पर उसको जैसे क्या कहते हैं खांडना मीन्स के उसको खंडित करती है, उसका खंडन करती है। यस। अनेन तुषेभ्यस्तकतण्डुलां पृथक् संजाता। As a result of this, the rice grain were separated from the husk. इससे क्या होता है कि उसमें से जो डांगर पे चोखा और उसके ऊपर जो कवर लगा हुआ होता है जिसे हम गुजराती में फोतरा बोलते हैं, तो वो उसमें से अलग हो जाता है। तांडुलन संप्राप्य सातुषानं भूषणानां मार्जनार्थं स्वर्णकाराय विक्रेतुं धात्रीम् अकथयत। Having obtained the rice grains, she told the elderly nurse to sell the husk to the goldsmith for cleaning the ornaments. उसमें से जो राइस है वो प्राप्त करने के बाद उसके बाद जो हस्क यानी कि जो उसका कचरा डांगर का जो फोतरा है वो जो दागीना बनाते हुए साफ़ करने के लिए दागीना को ऑर्नामेंट्स को साफ़ करने के लिए क्लीन करने के लिए वो जो गोल्डस्मिथ है सोनी है उसको जाके वो बेच देती है। बेच देने के लिए वो दासी को कहती है। तस्मान यत धनम मिलित तेन काष्ठानि आहर इति च धात्रीं निवेदितवती। She told the elder nurse to bring firewood with the money she would get. ये जो हस्क है वो देने के बाद जो धन प्राप्त होता है उसमें से फायरवुड यानी कि लकड़ी लेकर आने के लिए भी वो अपनी दासी को कहती है। धात्री काष्ठानि आनीतवती। The elders nurse brought the wood
दासी है वो लकड़ियाँ लेके आती है। तदनन्तरं स ताण्डुलानम् असकृत जलेन प्रक्षालितवती उष्णीकृते जले च तान् प्रक्षिप्तवती। Then she washed the rice grains many times and put them in the hot water. उसके बाद वो जो राइस है उसको बार बार पानी से धोती है और गर्म पानी में उसे डाल देती है। अल्पीयसा कालेनैव तांडुला सिद्धा संजाता। इन अ शॉर्ट टाइम द राइस वेर कुकड। कुछ ही समय में राइस है वो पक जाते हैं। ततः इंधनानि जलेन शमयित्वा कृष्णांगारनपि तदर्थिभ्यः प्रेषयित्वा यत् धनं लब्धं तेन धनेन शाकं द्रुतं दधि तैलं च कृतवती। फिर देन हैविंग extinguished यानी कि बर्निंग पीस ऑफ वुड with water and with whatever money she got by sending the coals to those who needed them. She bought vegetable, घी, oil and curd. फिर वो जो लकड़ी जली हुई थी उसको उस पर पानी डाल देती है और पानी डालने से उसमें से कोल्स है वो बनता है और वो जिसको ज़रूरत है उसको वो दे देती है और उससे जो धन प्राप्त होता है उस धन में से वो कुछ वेजिटेबल्स, घी और दही और तेल वो सब खरीद के लाती है। तेन च सा विविधानि व्यंजनानि संपादितवती एंड विथ इट सी प्रिपेयर्ड वेरियस डिशेस। और उसी से वो अलग अलग वानगियाँ तैयार करती है। संपन्ने आहारे सा कन्या धात्रीमुखेन अतिथये प्रथमं स्नान्तु निवेदितवती। When the food was ready, the young girl asked the guest through the elder nurse to take a bath. फिर भोजन तैयार होने के बाद वो कन्या दासी के द्वारा आए हुए मेहमान को पहले स्नान करने के लिए कहती है। ततः स्नान शुद्धाया तस्मै अतिथये सा पयोपाहारपूर्वं भोजनं द्रुतसहितं ओदनं व्यंजनं च अयच्छत। Then to the guest who had cleaned himself by taking bath, she gave rice and other dishes with ghee after first offering beverage and snacks. उसके बाद स्नान से शुद्ध होकर आए हुए अतिथि को पहले वो पीना और नाश्ते के साथ घी सहित भात और दूसरी जो चीज़ें बनाई हुई है वो सब उसे देती है। मध्ये मध्ये सा भोज्यादीनां विविधानां पदार्थानां वर्णनं कृत्वा अतिथे भोजनरुचिमपि अवर्धयत। In between the young girl even waited the guest desire for the meal by describing the various food items and other things. बीच बीच में जो खाने की चीज़ें बनाई है और अलग अलग पदार्थ है उसका वर्णन करती है और जो अतिथि है उसके खाने की भोजन की प्रति रुचि है वो बढ़ाती है। मुक्ते भुक्ते तु तस्मिन्नम् अतिथौ तया ताम्बूलस्यापि व्यवस्था कृता। The arrangement of when the guest had finished with the meal, the arrangement of a battle was also made by her. वो अतिथि के भोजन के लिए भोजन करने के बाद उसको पान की व्यवस्था भी वो करती है। एवं
स्वकीयया गुणसम्पदा प्रस्थपरिमितेन धान्येन विविधानि व्यञ्जनानि विरचितवतीं कन्या प्रति समाकृष्टः शक्तिकुमारः विवाहस्य प्रस्तावं कृतवान्. In this way, Shaktikumar was attracted to the young girl, who prepared various dishes with only one prust of paddy. Using her wealth of qualities, made a proposal of marriage. इस तरह अपने गुण संपत्ति के द्वारा ओनली 1 प्रस्त यानी कि 2 kg डांगर से बहुत सारी वानगियाँ विविध व्यंजन है वो तैयार करने के लिए तैयार करने वाली इस कन्या के प्रति वो आकर्षित होता है और शक्ति कुमार है वो उसे विवाह का प्रस्ताव रखता है. कन्या स्वीकृते प्रस्तावे ताम विधिवदुपयम्य स्वनगरं नयतम. When the proposal was accepted by the young girl, marrying her according to rites, Shakti Kumar took her to his own city. जब कन्या है वो इस मैरिज के प्रस्ताव का स्वीकार करती है, तब उसके साथ विधिपूर्वक विवाह करके वो अपने नगर उसे ले गया. So now student, this translation is over. So now you write in your class work. Then next video we learn this lesson of exercise. Thank you.